ہمارا شہر ہمارے لوگ، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ وسیلہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شفیع اللہ شیخ، آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام ہمارا شہر ہمارے لوگ، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ ناظرین، اب تک ہم آپ کو شہر کڑپا کے مسئلے مسائل دکھاتے آئے ہیں اور کوئٹ کا اسپیشل ایپیسوڈ بھی آپ کو دکھائے، لیکن آج ہم آپ کو ایسی سوسائٹی سے روبرو کرنا چاہتے ہیں، روبرو ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جو ایک ایسا محنتی کام کر رہے ہیں، الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی۔ حالانکہ پچھلے 4 سالوں سے عوام کی خدمت میں ہے، جیسے غریب اور یتیم بیوہ عورتوں کو ہر مہینہ راشن دیا جاتا ہے، جیسے کہ مفت میں راشن دیا جاتا ہے۔ اب تک 350 گھروں کے اندر راشن دیا جا رہا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ دیکھیے الرحمان سوسائٹی کس طریقے سے اپنے کام کو انجام دیتی ہے اور اللہ کے راہ میں کس طریقے سے محنت کر کے وہ یہ کام کو انجام دے رہی ہے۔ کرتے ہیں اللہ سے استعانت یعنی مدد مانگ، بچے کو پڑھنے کے بارے میں پریشان۔ ناظرین، آئیے الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی جس طریقے سے کام کرتی ہے اور جو راشن دیا جاتا ہے غریب لوگوں میں، آئیے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا جو یہاں کے راشن کا سامان ہے وہ دکھائیں۔ ناظرین، یہ دیکھیے چاول، جیسے کہ 7 کلو چاول دیا جاتا ہے، ہر ایک فیملی کو 7 کلو چاول دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے اور یہ آٹا بھی دیا جاتا ہے، آٹا اور تیل کی پیکٹ پورے A1 کوالٹی کے دیا جاتا ہے، جیسے کہ سٹورز کے اندر دیا جاتا ہے کم قیمتی کے، ویسے نہیں ہے، A1 کوالٹی کے دیا جاتا ہے۔ تیل کے پیکٹ، تور کی دال اور املی اور نمک کی پیکٹ اور کھوپرا اور جو چیز راشن میں استعمال ہو جاتی ہے وہ سب چیزوں کو دیا جاتا ہے، باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے کتنے پیکٹس بن کر رکھے ہیں جو کہ اتوار کے دن، حالانکہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو 350 گھروں میں راشن دیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر پورے پیکٹس جمع ہوئے ہیں، پوری پیکنگ کر کے رکھے ہیں، وہ بھی جلد سے جلد جیسے کہ آج شام میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی راشن کے ساتھ ساتھ اور تربیتی کیمپ لوگ راشن کے ساتھ ساتھ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کے عورت کے حقوق کیا ہے، وہ عورت کیسا رہنا چاہیے، ان کے گھر والوں کو کیسا دیکھ بھال کرنا چاہیے، یہ بھی سکھاتے ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو اس پروگرام کا انجام ہوتا ہے، پروگرام چلایا جاتا ہے اور دیگر مولانا آتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں، یہاں پہ اس کے بعد ان کو راشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے۔ راشن کے ساتھ ساتھ جو ضروریاتی چیزیں جیسے کہ گرائنڈر، سلائی مشین اور واٹرز، جو بوڑھے عورت ہیں ان کے لیے واٹرز اور کیمپس بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگ آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو آپ کو کیا ڈال لو، کچھ ڈال لو، میرے کو آپ کو کیا ڈال لو، کوئی ڈال لو، بس 1 سال کی ہے میرے کو، چلو بھائی
اللہ ہماری باتوں کی وجہ سے کسی ایک کی زندگی سدھار آ جائے یا کوئی بات عمل کرنے والے آ جائیں، اسی لیے آتے ہیں سب، اللہ کے لیے کچھ ثواب مل جائے اور قوم کی کچھ اصلاح ہو جائے، اتنی فکر لے کے یہاں پر کئی لوگ جمع ہوئے ہیں، تو آپ بھی کچھ درد لینا ہے، بغیر درد کے یہاں سے چلے جائیں تو مجلس کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ درد کے ساتھ دعا کریں تو رونا خود بخود آ جائے گا، اگر یہاں پہ نہیں اپنے گھروں کے اندر بھی دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، بے شک خطاکار ہیں، گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، میرے مولا تو جانتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے کتنے گندے ہیں، کہ اللہ ہماری گندرازوں کو قبول کرنا، جو لوگ اس کام میں تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما، اللہ دنیا کے اندر ان کو بلند مقام عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا مقام عطا فرما، اے اللہ خاص کر الرحمن الخیر سوسائٹی والوں نے اس کا جو ساتھ دینے والے ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہو یا جتنے بھی کارندے ہو، کام کرنے والے جتنے بھی تنظیم ہو، اللہ ان کو ہر اعتبار سے اپنی نصرت میں شامل فرما، اپنی غیبی مدد ان پہ نازل فرما، اللہ اپنی نصرت ان پہ نازل فرما، اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اس کو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہمارے حق میں خیر ہو تو اس کو بھی قبول فرما، اللہم شامل فرما، اللہ صدیقین میں شامل فرما، اللہ تیرے نیک لوگ بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، یا اللہ خاص کر جتنی بھی عورتیں یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ ان عورتوں کو نماز کی پابندی نصیب فرما، کہ اللہ ان عورتوں میں کہ اللہ اسلام کی پابندی نصیب فرما، کہ اللہ برقعے کی پابندی نصیب فرما، کہ اللہ اسلام کے دائرے میں رہ کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، کہ اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا سکھا، کہ اللہ کسی اور سے مانگنا مت سکھا، کہ اللہ تیرے سامنے جھکنے کی عادت نصیب فرما، کہ اللہ تیرے سے مانگنے کی عادت نصیب فرما، کہ اللہ جتنے بھی عورتیں یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کو گھروں کے اندر پنج وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، کہ اللہ ذکر و اذکار قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، کہ اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، کہ اللہ دنیا اور آخرت عطا فرما، کہ اللہ خاص کر اس کمیٹی والوں نے الرحمن الخیر سوسائٹی والوں نے جس نیک ارادے سے لے کر ایک کام کو انجام دے رہے ہیں، والعفت والعصمت والامانہ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني وأن يشفينا، اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کلّا پڑنا ہے چہرہ دکھانا نہیں، جو ہمارے سے ہونے کی جو بیٹھا جی بیٹھو بچے پڑھے گی بیچنا بھی بیچنا تھا کہ ادھر سوچ واپس جا رہا ہوں ادھر کی مہربانی شکران دیا
हुसैन साहब ये आगे हुसैन साहब کرنے کی کوشش کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وہ بتا رہا تھا کہ آپ یہاں پر ہماری کی گئی عبادتوں کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا. رزق جو ہے باقاعدہ اللہ کی طرف سے اس کو پورا کر بہت کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتی ہے. رزق کے ذرائع عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو اپنے فرمان پر عطا فرما. ناظرین، واقعی میں رحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی ایک زبردست کام کر رہی ہے. غریب اور یتیم بیوہ عورتوں میں راشن دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہیں. ہر مہینے کی پہلی اتوار میں اس کام کو انجام دیتے ہیں. لگ بھگ 350 گھروں کے اندر راشن دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فری میڈیکل کیمپ بھی کیا جاتا ہے. آئیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں، ان کے حالات جانتے ہیں. آئیے. ماں، آپ کا نام اگر الماس پر سے ہمارے شوہر ہیں. نہیں ہے. کتنے بچے تم نا؟ 3 جنے بچے. کیا ماں بچے حالت ایسی ہے؟ یہ کیا کھاتے نہیں بھیا، اوپر کھاتی کیا کھاتے نہیں، خالی دودھ رکھتی تھی اوپر دودھ. اب تمہارا جینے کا ذریعہ کیسا نا؟ ہمارے بھیا نے دے دیے. یہ سودا لگ جاتے. کتنے سال سے آپ لیتے ہیں تمہیں؟ دمم ہے نا یہ تاجا. تمہیں کیسا معلوم ہوا ہے سوسائٹی کے بارے میں؟ یہ بھیا نا چاہو بولے. لو جاگو تم. ہاں ہاں. تو بچے کا علاج کراتے ہیں؟ کیا نہیں بھیا، میرا اس ٹائم اچھی تھی. وہ نما جاگو ایسا ہو گیا. کتنے بچے تم نا؟ 3 جنے. ناظرین، واقعی میں غریبی ایک دردناک چیز ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، غریبی ایسی چیز ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا ہے، سب کچھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی انتظام نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین سے، جو آپ بے فضول خرچ کئی جگہوں پہ کرتے ہیں، لیکن جو خرچ بے فضول کرنے سے پہلے ایک بار ان غریب عوام کے لیے خیال کیجئے. اور جو آپ کا زکوٰۃ اور فطرہ ہے، جو آپ زکوٰۃ دینے تو الحمدللہ دیتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے یا نہیں آپ نہیں جانتے. کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی دے دیتے ہیں. لیکن جب آپ زکوٰۃ پوری طریقے سے نکالتے ہیں اور صحیح جگہ پہ خرچ کریں تو ایسی چیزیں دیکھنے کو بہت کم ملیں گی. لیکن میں یہی گزارش کرتا ہوں، جو بھی آپ بے فضول خرچ کرتے ہیں ایک بار سوچئے ان غریب عوام کے لیے اور ان کے لیے مدد کرنے کی کوشش کیجئے. ناظرین، رحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی کے جانب سے راشن دیا جاتا ہے ہر مہینے کی پہلی اتوار کو.
اور ساتھ ہی ساتھ فری میڈیکل کیمپ بھی کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ادھر ڈاکٹر جمال صاحب اور ڈاکٹر خلیل صاحب موجود ہیں. ہر مہینے کئی ڈاکٹرز آتے ہیں, منیمم 3 ڈاکٹرز تو ادھر رہتے ہیں علاج کرنے کے لیے. لیکن ناظرین, اس مہنگائی کے دور میں ڈاکٹرز کی فیس 100 سے 150 روپیہ ہوتی ہے. جب ان کے ہاسپٹل پہ جاتے ہیں ہم چیک اپ کے لیے 100 سے 150 روپیہ ہوتی ہے. لیکن ایسے کم ڈاکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو فری علاج, اپنا سمے اپنا وقت نکال کر یہاں سوسائٹی کے پاس آ کر انہیں فری چیک اپ کر کے ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کمپنی کے ٹیبلٹس دیے جاتے ہیں, جیسے کہ جنرک نہیں, کمپنی کے اوریجنل ٹیبلٹس بھی ادھر غریب اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ سوسائٹی کے لیے بہت بڑی چیز ہے کرنے کے لیے. حالانکہ سوسائٹی کے صدر محبوب بادشاہ صاحب ایسے ذاتی مالدار تو نہیں ہے, حالانکہ میں جانتا ہوں, میرے بچپن سے میں جانتا ہوں محبوب صاحب کو, جو ایک غریب آدمی ہے. اور جب ان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ غریب عوام کے لیے کچھ کریں, انہوں نے ایک قدم اٹھایا تھا. الحمدللہ 4 سال سے اب تک 350 گھروں میں راشن دیا جاتا ہے اور فری میڈیکل کیمپ چلایا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کفن دفن کا بھی انتظام ہے اور شادیوں کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. اور ناظرین, یہ سب اللہ کے مہربانی سے چل رہا ہے اور شہر کڑپا کے عوام کے تعاون سے چل رہا ہے. اور سوسائٹی کا یہ کہنا ہے کہ اور بھی جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں, ہمارے سوسائٹی سے رابطہ کریں اور جو بھی معلومات ہے معلومات کریں اور کچھ نہ کچھ مدد کریں تو اور بڑے پیمانے میں اور کئی لوگوں کو مدد کیا جا سکتا ہے. ایسے تو کئی سوسائٹیز ہیں ہمارے شہر کڑپا میں, لیکن واحد ایک ایسی سوسائٹی ہے رحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی جو اتنے بڑے پیمانے میں یہ کام انجام دے رہی ہے. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر برانڈیڈ ٹیبلٹس, جیسے کمپنی رینڈیکس ہے, ایسے بڑے بڑے کمپنیوں کے ٹیبلٹس بھی دیا جاتا ہے اور فری میں علاج بھی کیا جاتا ہے. آج کے دور میں علاج کرانے کے لیے ہزاروں روپے رکھنے جاتے ہیں. منیمم ایک بخار آئی تو کوئی ہاسپٹل کو جانا چاہے تو 1000 سے 1500 روپے تک خرچ ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ مفت میں علاج کیا جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر جمال صاحب اور ڈاکٹر خلیل صاحب بھی موجود ہیں. क्या करता है? तो भाई करेंगे डॉक्टर साहब 2 लाख का 9 लाख 3 लाख का अभी जुड़ा था अरबी कहाँ था मेरा इंग्लिश में बोला इंग्लिश असल आता नहीं बोले मल्लिका कुमार मल्लिका कुमार ناظرین, آئیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمال صاحب موجود ہیں ادھر. وہ ہر مہینہ
फ्री मेडिकल कैंप में हिस्सा लेते हैं। जब से सोसाइटी चालू हुई है, शुरू हुई है, तब से डॉक्टर जमाल साहब इधर अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, हमने आपको देख रहे हैं जब से सोसाइटी चालू हुई है तब से आप इनको साथ दे रहे हैं, इसके बारे में, सोसाइटी के बारे में आपको? ये रहमान इमदाद सोसाइटी गरीबों के लिए खिदमत करने के लिए हर महीने में यहाँ मेडिकल कैंप और रेशन दे रहे हैं। और मेडिकल कैंप में रकम के बीमारियां वाले आ रहे हैं, उनको सबको हम मुफ्त में ये टैबलेट्स ये सब दे रहे हैं, सिरप्स दे रहे हैं। और जो बहुत गरीब लोग आ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं इधर, बिल्कुल जो रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए खाना भी नहीं है। और ये जब बीमारी आती है तो बाहर जाने से सबको 500-1000 रुपए खर्चा करना पड़ता, लेकिन हम यहाँ ये गरीब लोगों को फ्री से दवाई देते हैं। और बहुत से लोग इधर आ रहे हैं, हर महीना 300-400 से ज्यादा लोग आ रहे हैं इधर। जब से ये सोसाइटी आई है, मैं यहाँ आके हर महीना फ्री में मेडिकल कैंप चला रहा हूँ। ये मेडिकल कैंप ये सोसाइटी के मेंबर्स अपने महबूब बादशाह साहब और उनके साथी ये सब मुफ्त में रेशन भी दे रहे हैं। और रमजान के महीने में, बकरीद के महीने में उनको गोश्त और पूरा जो रेशन सभी हर दिन के लिए दे रहे हैं। ये लगभग हर महीने में 2 से 2-3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं ये सोसाइटी की तरफ से। और हमको उम्मीद है कि ये सब लोग हमारे लिए अल्लाह के पास हमारे लिए दुआ करें। डॉक्टर साहब एक छोटा सवाल है, जो आज के दौर में डॉक्टर्स की इतनी कमी है, इतने पेशेंट्स हो चुके हैं, लेकिन आप इतना आपका कीमती वक्त निकाल कर इधर आके फ्री में सर्विस करने की वजह क्या है? गरीबों को खिदमत करने में अल्लाह को पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ। नाजरीन, वाकई में डॉक्टर जमाल साहब ने अपनी दिल की बात कही है। जो अगर ये वक्त वो अपनी क्लिनिक में गुजारते तो 3 से 4 हजार रुपए कमा लेते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और गरीब आवाम की खिदमत के लिए डॉक्टर साहब इधर अपना वक्त निकाल कर इधर फ्री सर्विस कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बात करने के लिए के नर्सिंग होम से डॉक्टर खलील साहब हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप कब से इधर सर्विस कर रहे हैं फ्री मेडिकल कैंप? जब बुलाए तब हाजिर हो जाता हूँ। इधर क्या क्या इलाज हमें जनरल मेडिसिन है पूरा, तकरीबन दर्दों के लिए, बीपी, शुगर और मतलब तकरीबन अमराज के लिए दवाई दी जा रही है। सर एक छोटा सवाल है, आज के दौर में डॉक्टर्स की कमी है, इस डॉक्टर्स की कमी और पेशेंट ज्यादा होने की वजह से कोई डॉक्टर फ्री सर्विस करने से पीछे हटा, क्यों बोले तो अपने क्लिनिक पे ज्यादा रहते हैं, तो आप इतना समय निकाल कर इधर फ्री सर्विस करने की वजह क्या? वजह कुछ भी नहीं है, ऐसा है अब वो गरीब लोगों को देख के थोड़ा अफसोस तो होता है हर किसी को, और हर कोई मदद करना चाहिए। मेरे अलावा और कोई मददगार हैं तो आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। नाजरीन, डॉक्टर साहब का ये कहना है, आज के दौर में भी इतना बिजी रहने के बाद में डॉक्टर इधर सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए, ना ही इसमें कोई पैसों का मामला है, बस गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए वो इधर हाजिर हैं। तेरे में ही नहीं है क्या हुआ? हाथ पड़ा कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, आखिर मोहम्मद साहब एक कलमे के भूल करके तो कलमे में शरीक में आखिर रिश्तेदार बनते हैं। सुनाए जितने भी नबियाँ हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेंगे, कोई एक शक्ल मिले हैं, हर नबी उम्मत की फिक्र लगी, अपने कौम की फिक्र लगी, बंदों की फिक्र लगी। हमें देखो मरा पड़ रहा है बच्चा, बड़ा बच्चा धूपा में अल्लाह के वास्ते बाहर भेजना को, कम से कम पीने का पानी, ये धूपकाल में खास कर तो पानी को सा पानी के वो पानी म्यूनसिपलिटी वाले भेजता दे रहे, कम से कम पीने के पानी को जरा गर्म कर ले को भाकर में की तुलसी में की डाल ले पिए तो ज्यादा के उल्टा पैखाने बच्चों को ज्यादा उल्टा पैखाने आते हैं। खाने के पहले एक लाइफ बाय साबुन की, एक डेटॉल साबुन की ले लो, हाथा साफ धुला को
इतना तो खला बोलना खाली गया मामू पानी से हाथ धोने आपको बैठ गया हाथ को पेटी में पिए के बच्चे की पेट में ले आएगा तो नहीं से बीमार आएगी छोटे छोटे चीज़ें जो हमारे हाथ में ही कर ले सकते हैं पीने का पानी खाना ये वगैरह। नाज़रीन आइए उन लोगों से बात करेंगे जो रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी से हर महीना राशन लेते हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम आरिफ है, हमारा राजूटी है। हाँ 2 साल से लिया तो राशन में क्या क्या देते हैं आपको? दाल देते हैं, चावल देते हैं, खोबरा देते हैं, अमली देते हैं, तेल देते हैं, नमक देते हैं। तो आपको ये क्या आपका पेट मेरा किडनी खराब हो गई दूधी 5 साल हो गया। 5 साल की घर में प्रोटीन खा लेता हूँ। आज खाना महीने के टाइम आता हूँ यहाँ को ले गया तुम सामान। तो डेली महीने के ऊपर रेडी चावल ले आते हैं। कितने साल से ले आते हैं? 3 साल से क्या क्या देते हैं राशन में? चावला अमली फली नहीं तो खोपरा की तेल नमक। अब जो ग्राइंडर तुम्हें लिए हैं तुम्हें बोल को लिए सो हाँ बोल कुछ अच्छा बोलो कितने दिन हुआ ना? 1 महीने बोल 1 महीने में बोल 1 महीने में दे आले। अब तुम्हें लिया क्या करते हैं ग्राइंडर में? मैं चीले डाल चीले डाले पीस ले चिकन काम आता ना गाड़ी गाड़ी घर से आ बेगम 2 बरस से आती हूँ। क्या क्या देते हैं राशन में? ये चावल खोपरा दाल अमली मिर्चा की पैकेट आके तो देती। हाँ महीना देती। घर में कौन कौन होते हैं तुम्हारा? मेरी बच्ची मेरी बा कौन न है मरद न है क्या न है। ये राशन आने की वजह से उनको बोलिए ना इन्हों तुम्हारे पास क्यों नहीं? नहीं मैं आपको पूछू मालूम कर लो सबको देते ही घर को मालूम कर लो आपको पूछी तो हजरत को दिया जब से ला लगे ही। तो राशन करेक्ट देते हैं? हाँ करेक्ट महीना देती अगाड़ी घर पर मैं अगाड़ी। नाज़रीन आइए हमारे साथ बात करने के लिए सोसाइटी के सदर महबूब बादशाह साहब है। महबूब बादशाह साहब आप बताइए रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी कितने सालों से आप चला रहे हैं और इसके प्लान्स क्या है और क्या क्या आप तकसीम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस कायनात के रब के लिए सारे जहानों को पालने वाला। यह रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी 2013 से शुरू हुई है। अल्लाह के फजल करम से 4 साल पूरे हो चुके हैं। 5वें साल में दाखिल हुए हैं। इसमें जो बेवा यतीम लाचार लोगों को हर महीना राशन के इंतजाम अल्लाह के फजल करम से 1 घर 2 घर करके 350 घरों को चल रहा है। जिसमें हर महीना उन लोगों की दवाएं के लिए किसी शुगर है BP है बुखार है ऐसे लोगों को हर महीना अच्छे डॉक्टरों से जमाल सर आप भी साथ से जैसे बड़े डॉक्टरों को होने का राशन ये मेडिकल कैंप में हिस्सा लेकर इंशाल्लाह महीने दवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों को दीनी किताबों के लिए उनके बच्चों की तालीम के लिए जो जो चीज़ें जरूरत पड़ती हैं वो सब भी इंशाल्लाह दे रहे हैं। एक बात इसमें गौर करने की बात क्या था जो गरीब आदमी गुजर जाने पर कफन और दफन का पूरा इंसान अल्लाह के फजल करम से सोसाइटी मुफ्त कर रही है। साथ साथ जनाजे के आमलेज भी रखे हुए हैं। अभी हमें थोड़ा अल्लाह को ज़कात सदका हम लोग को कुछ पहुँचा तो इंशाअल्लाह एम्बुलेंस के लिए भी हम इंतजाम करना चाहते हैं। जो गरीब लोगों के लिए यानी तमिलनाडु मद्रास जाना चाहते हैं, चेन्नई से तिब्बत जाना चाहते हैं, हैदराबाद जो कर्नूल जाना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, बीमार है, ऐसे जो एम्बुलेंस के पास 5,000 10,000 15,000 लोग होते हैं। इसके खातिर इनके हमें एम्बुलेंस रखे तो इंशाअल्लाह उन लोगों को खाली फ्री हमें इंतजाम करना चाहते हैं। यह सब है देखिए आप जैसे खैर आजाद की ज़कात सदका होता है हर साल जिसमें खर्च 2 लाख रुपये हर महीना 2 लाख रुपये खर्च हो रहा है। यह सब है आप हज़रात से गुजारिश करते हैं हमें ज़कात सदका हमको इंशाल्लाह सोसाइटी पहुंचाकर साबिदारी हासिल करें। ये पैसा 1 रुपया भी ज़ाया नहीं किए बगैर हमें हर इंसान जरूरतमंद इंसान को राशन इंतजाम करते हैं, बीमार इंसान को बीमार कुछ के लिए दवाएं देते हैं, गरीब आदमी को पर कफन और दफन इंतजाम कर रहे हैं। साथ साथ में गरीब बच्चियों की शादियों के लिए अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 60 पर 5 शादियां हो चुके हैं। उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। कम से कम तो भी 60 पर 5 या 70 गरीब लाशों के लिए भी कफन दफन इंतजाम अल्लाह की सोसाइटी कर रही है। अभी बहुत कुछ काम करने के वाक़ई हैं इंशाअल्लाह। ऐसे औरतें ही इसमें खाने के लिए मोहताज हैं, पकाने के लिए कोई पका को नहीं दे रहा है। इसलिए है कि हमें कुछ अभी काम है जबकि ज़कात के बसा आने के बाद रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह अभी बहुत कुछ काम करने के हैं। ये सब
आप जैसे हजरत देखने के लिए आपको सोसाइटी के पास देख सकते हैं कैसे लोगों के राशन इंतजाम हमें कर रहे हैं। आप आंखों से देखकर हमें इंशाल्लाह सोसाइटी को की कुछ भरपूर मदद करो। ये सब है देखिए आप हजरत का ज़कात के वजह चल रही है, ये नहीं फिर सोसाइटी वाले देते हैं नहीं, ज़कात के बराबर इकट्ठा करके लेकिन साल बराबर चलाते आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये साल भी उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से ज़कात भरपूर इंशाल्लाह सोसाइटी को पहुंचाकर साबितारी हासिल करे। इंशाल्लाह आज 9 तारीख है, शाम के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप सब तफसीलात से आप देख सकते हैं। इन लोगों को दीन तालीम के लिए, बयान के लिए, गान रखो, बेपर्दगी से फिरना, नमाज पढ़ना, मरने के बाद क्या होगा, अल्लाह उस रसूल फरमा बरदारी, दुनिया की हालत कैसी है, मुसलमानों पर कैसा जुल्म सितम हो रहा है, ये सब तफसीलात हमें दिखा रहे हैं। इसमें औरतों के लिए घर की औरत बदल गई इंशाल्लाह, सारा माहौल घर का बदल जाता। घर की हालत सही नहीं है, बच्चे तरबियत सही नहीं होती है तो माँ की कमी पेशी, माँ बाप की कमी पेशी होती है। माँ बाप सही हो गए तो इंशाल्लाह घर बार सुबह जन्नत के मुस्तहक बन जाती है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखते भी हैं तबलीग के साथ साथ इन लोगों को चद्दर होना, बुरगा होना, जो तालीम देने का है हमें इंशाल्लाह कोशिश करते जा रहे हैं। इसमें ये सब इकट्ठा होकर हम कमेटी नंबर सुबह के कम से कम 8 से 10 जने हैं। इंशाल्लाह ये कमेटी 2013 साल हुई है। इंशाल्लाह अभी इसमें उम्मीद करते हैं भरपूर नौजवान तबका इसमें मिलकर लेकिन एकजुट होकर फिरका पर से छोड़कर हमें सब उम्मत के लिए काम करेगा। इंशाल्लाह उम्मत गरीबी हटेगी, इंशाल्लाह उनको पेट पर राशन मिलेगा, उनको दीन तालीम मिलेगी। लेने वाले बनो, देने वाले बनो, इंशाल्लाह ये उम्मीद हमें रखते हुए इंशाल्लाह सोच आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब लिए अल्लाह के फजल करम से आप जैसे खराब से ज़कात सदाकत हो रहा है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आप बताइए आपको ये सोच कैसे कि एक सोसाइटी ओपन करे और इसमें गरीब लोगों की मदद करें? भाई ये सोसाइटी में एक पैकेट बने, हमें खुद के बच्चे लेकर बनाकर एक घर को देख भेजे। हमें घर को देख भेजने के बाद है कि भाई ये गरीब आदमी है, इसके लिए है कि खाने का चलता नहीं तो चलना बोले को वापस देख भेजे। देख बाद आदमी चलेगा नहीं चला, खाने चल आदमी खाना नहीं गाँव छोड़ चला, आदमी परेशान लगता करते बोले भाई इतनी गरीबी गड़बा शहर में कैसा है। तो गली गली में सर्वे कर है कि घरों में है कि शोर गुजरा, छोटे बच्चे रहते हैं, किसी के पास हाथ नहीं फैला सकते, मजदूरों के पास मांगते नहीं है, ऐसे घरों को हम तलाश करते हैं। जैसे मांगने वाले को हमें नहीं देते, सड़कों में मांगने वाले को, मजदूरों में मांगने वालों को, घरों में मांगने वालों को हमें नहीं देते। घरों के अंदर इज्जत के साथ लेकिन हाथ लंबा करे तो भाई कुछ दो तो पूछने वाले बन के, लेकिन रोड़ा बाको नहीं भाई दो अचार नहीं दो पूछने वाले को हमें देते नहीं, हमें देते नहीं। और एक और बात जनाब अब बताइए आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है या आप ही खुद उनको जाके ढूंढ के देते हैं? भाई हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हमें खुद ढूंढती है, हमें खुद ढूंढते हैं, हमें ढूंढ कर है इंशाल्लाह हमें कुछ देते हैं। इसमें घर में सर्वे करते हैं तो फलाना गली में है कि एक सर्वे करके 3-4 दिन हमें मिलती है इंशाल्लाह है कि उसमें सर्वे करके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर जैसे सहूलतें नहीं चीज़ें हैं वो चीज़ें हम तलाश करते हैं। अब जो राशन हमारे औरतें ले आती हैं, ग्राइंडर देती हैं, कपड़े सिलिंग मशीन देती हैं, छोटा सा दुकान लगा देती हैं, इडली सेंटर लगा देती हैं, ये सब है देखें बगैर पैसे के फ्री देते हैं हमें। कई को तो ये लोग इसके ऊपर जी को है कि इनके बच्चों की जिंदगी अच्छे बना दे इंशाल्लाह वो उम्मीद हम रखते हैं। हजरत हमारे पास देखिए जनाजे की गाड़ी है जो याकूब साहब मस्जिद के सामने मौजूद है, रहमान सोसाइटी के नाम के स्टिकर भी लगे हुए हैं। जो भी हज़ार दिन में गुजर गई, भाई रायचूटी जाना है या बदौल जाना है, पुदुडू जाना है, जो अपने अपने खेड़ों के पास नहीं क्या वो लाश को मरहूम गुजरे हुए से इंसान ले जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी आगे बढ़कर इंशाल्लाह हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ देखें हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज रखे हुए हैं एम्बुलेंस के लिए 3,40,000 रुपये एम्बुलेंस के लिए शोरूम से हमें एस्टीमेट बिल लगाकर भेजे हुए हैं। इसमें जो भी हज़ार हम कुछ हिस्सा मिलकर हम इसमें दिलाना चाहते हैं दिलाओ इंशाल्लाह। पूरा आपको गरीबों को बहुत मदद होती है इसमें। कहीं भी वो तो इसमें है देखिए आदमी गुजर जाने के बाद है देखिए हम सर्वे करने के लिए इसमें क्या भाई आदमी की हालत सही नहीं तो क्यों घर को ले जाती हैं। आसन में आदमी कुछ इलाज होता नहीं क्या तो हजरत बोल जाती है इलाज होता तो खुदा ना खासा गुजर गया तो घर को ले जाना चाहिए 5,000-6,000 पैसे पूछते हैं। उससे कहते हैं कि हमें वो मरना है घर में मरने दे, हमारे पास पैसे मौजूद नहीं, उससे कहते हैं हमें पहले लाश को ले चलाते हैं इंशाल्लाह। से हमें हर जगह पे सर्वे करते हैं, हमें सर्वे करे बगैर किसी के देने अल्लाह के फजल से किसी की रिकमेंडेशन देते हैं इसमें भाई उसी दे डाल इसी को हमें दे देने। घर की हालत देखते हैं, घर के बच्चे कितने हैं, घर में कैसे चल रहा है, बहू बेटा है, माँ बाप को पकड़ा जाते नहीं। वैसे खराम अल्लाह के अल्लाह ताला नेक देना उन औलाद को जो 9 महीने पालने के बावजूद भी है देखिए धक्के मार के बाहर ढका इंसान का उन्हें मांग लेती है, खाती है, पीती है तो देखने वाले भी नहीं ऐसे लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी हुई है वो तालीम के साथ साथ ने कि हमें ये तालीम दिखा दी माँ की खिदमत कैसा करना, बाप बाप की खिदमत कैसा करना, अड़स पड़ोस में कैसा करना, किसी हो किसा है तो हर महीना मेडिकल काम रखते हैं इसमें। ये सब है देखिए
जो काम सोच कर रहेंगे इंशाल्लाह कौम के लिए कुछ भलाई है, ये भलाई करे तो फलाना काम भलाई होता है। तो इंशाल्लाह हर महीना इसमें दवाएं के साथ हो, मेडिकल कैंप के साथ साथ हो, राशन के साथ साथ भूखा हो, सब देती है हमें। ये जो एम्बुलेंस रखी हुई है, ये एम्बुलेंस देखिए हमारा तुम्हारा समझना को इंशाल्लाह हमें फोन करो, आज रात को इंशाल्लाह फलाना जगह पहुंचाओ तो हमें पहुंचा दिए। किसी के पास 1 रुपया लिए बगैर हमें काम कर रहे हैं। जो भी देखना चाहती है तो हर महीना मेडिकल कैंप के लिए आप देखो तुम्हें एम्बुलेंस भी आंखों सामने मौजूद है। हमें जो भेजी मैसेज हो इंशाल्लाह कुछ मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करता। वो एम्बुलेंस में 3,50,000 रुपया होती है, आदमी जो डाले तो इंशाल्लाह वो काम भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ करता हूँ, फिर उम्मीद इसके बाद होती तो एक बात उसमें गौर करने की बात है आदम, जो चंदा है जो माल के तौर पर जो चावल हंदे दाल हंदे दे सकते हैं हमें, ये पैसा हम दे सकते हैं। पैसा देने के बाद कि भाई हज़रत पैसा पूछते हैं भाई तो ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, देखो तुम्हें सोसाइटी की बात पूछा खुला पूछ सकते, इसमें गलती क्या भी नहीं। जो आपका पैसा मेहनत से कमाया पैसा जाया नहीं होना आगा। एक जगह कल मुझे मिस्त्री में 6,000 रुपया पैसा आया बैंक में, डाला हजरत मैं 6,000 रुपया पैसा डाल रहा हूँ, ये पैसे के लिए ग्राइंडर खरीदना, ग्राइंडर खरीद कर देखिए मैं ग्राइंडर का फोटो, ग्राइंडर जिस औरत देती उसका फोटो, उसकी बिल में मिसेज करो इंशाल्लाह अभी बहुत मदद कर दूं। लेकिन तो जो सोसाइटी जो काम कर रहे हैं अल्लाह को हर जगह काम कर रहा है, ये उम्मीद उड़ गई थोड़ा भाई काम करती है कि नहीं करती है कि सब उड़ गया है, डर खौफ है लोगों दिल में। हमारा पैसा सही जगह खर्च होता नहीं तो इंशाल्लाह हर जगह सही जगह खर्च करने की कोशिश करता है। लेकिन ये अफवाहें उठती हैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं इसलिए भरपूर मदद करो, अल्लाह तबारक व तआला हर पैसा भी गरीब को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि रहमान सोसाइटी के सदर अहमद महबूब बाशा साहब ने कहा है, जैसे कि राशन 350 घरों में दे रहे हैं और साथ ही साथ जनाजे का इंतजाम, कफन और दफन का इंतजाम, शादी का इंतजाम और बेरोजगारी को रोजगारी का जैसे कि दुकान लगा के देना, उनको केले के गाड़ियां देना और ग्राइंडर और सिलाई मशीन दे के इनके जरिया बना रहे हैं कमाई का। और एक और बात यह है कि जैसे कि आम दिनों में हर महीने की पहली इतवार में ही नहीं बल्कि रमजान में भी दिया जाता है और बकरीद में गोश्त का भी तकसीम किया जाता है। और जिसके पास माली हालत ना हो, जिसको रोजी का इंतजाम ना हो, उनको भी रोजी का इंतजाम करते हुए काम को अंजाम दे रहे हैं। और रहमान सोसाइटी हाल ही में एक एम्बुलेंस खरीदा है, एक सेकेंड हैंड एम्बुलेंस खरीद कर आवाम के गरीब आवाम की खिदमत के लिए, जैसे कि लाशों को मौतों को घरों तक पहुंचाया जाए या किसी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। उस एम्बुलेंस की कंडीशन ना अच्छी ना रहने वजह से नई एम्बुलेंस का इंतजाम करने के लिए वो एस्टीमेट बिल भी लाए हैं, जिसकी कीमत 3,40,000 में 5,000 रुपया बताई जा रही है। और इस एम्बुलेंस को खरीदने के लिए सोसाइटी के पास जो पैसा है वो पैसा नहीं है और वो अपील करते हैं कि शहर कड़पा के आवाम से जो आदमी 1 रुपया भी दे तो 3 लाख लोग मिले तो 3 लाख रुपया हो जाता है। 1 रुपया किसी की बड़ी बात नहीं, हालांकि 1 रुपया ही नहीं बल्कि 10 रुपए भी दे सकते हैं आप। सोसाइटी के पास इतनी ताकत नहीं है जो हर महीना राशन के लिए 2 लाख रुपए देते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का फजलो करम है जो अल्लाह के रहम और करम से सोसाइटी चल रही है और शहर कड़पा के अवाम के ताउन से सोसाइटी चल रही है। और हमें उम्मीद करते हैं कि रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी आगे चलकर और ऐसे कामों का अंजाम देगी और गरीब लोगों की, गरीब आवाम की काम में खिदमत में काम आएगी। नाज़रीन, रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी को ताउन करने के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है और मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पे अकाउंट में आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं या इनसे राब्ता करके इनके ऑफिस जाके आप पहुंचा सकते हैं। रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी का एड्रेस कृष्णा हॉल के पास मस्तान वाली स्ट्रीट, शाही दरबार होटल के बाजू गली में, पॉपुलर टायर्स के नाम से। और रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी का एक बोर्ड भी नजर आएगा, उधर ही आप रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी के सदर महबूब बाशा साहब रहते हैं, उधर से आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। और आप कुछ ज़कात फितरा कुछ खैर खैरात भी करना चाहे तो आप उधर से करके आप रसीद ले सकते हैं। नाज़रीन, एक और बात है, जो आपका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं खर्च हो रहा है, आप उनसे उसके डिटेल्स भी ले सकते हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं तो हर महीने की पहली इतवार को आए, सोसाइटी के पास आए, वो इधर से अपना काम अंजाम करते हैं। और इधर से कई लोगों को 350 घरों को राशन दिया जाता है और मेडिकल कैंप भी किया जाता है। हमारा शहर, हमारे लोग, हम बनेंगे आपकी आवाज।